کرتے ہیں کہ آج خداوند نے ممکن کیا کہ آپ سب خداوند کے حضور ہیں. آپ کسی اور جگہ ہو سکتے تھے, آپ اپنے گھر میں آرام فرما سکتے تھے, آپ اپنے گھر میں کچھ اور بھی مصروفیات کر سکتے تھے, لیکن آپ نے مناسب جانا کہ آپ خداوند کے حضور آئیں. کہا کہ کلام میں لکھا ہے, میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. سو آپ سب کے سب یہوہ کے گھر میں ہیں, اور جب آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کے اس کے گھر میں آتے ہیں تو وہ آپ کی دلی مرادوں میں ہمیں, وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے, وہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے, وہ آپ کو موت کے سایہ کی وادی میں سے بچاتا ہے. خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے, موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اور جو اس بات کو سمجھتے ہیں, جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا روح ان کے ساتھ ہے, وہ موت کے سایہ کی وادی میں ہو, وہ موت کے سایہ کی وادی میں نہ بھی ہو, تو بھی وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. آئیے بغیر دیر کیے خداوند کے زندہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے گا اور ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ دیکھیں گے, اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کلام تلاوت کے لیے سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں اور ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے. یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. اگر جماعت میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہو تو اسے بھی آزادی ہے, اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر میں خود ہی سے پڑھ دوں گا. اگر بہن شبانہ پڑھنے میں رہنمائی کر دیں. یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت, ایک ہی آیت پڑھیں. اونلی 12ویں, ایک ہی آیت پڑھیں گے. 12ویں آیت پہلا باب. خداوند نے مجھے فرمایا, اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا, کہ تو نے کیا دیکھا؟ خوب دیکھا, کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. کیونکہ میں اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. بھائی اپنے قدموں پر بیٹھتے ہیں اور ایک چند میں خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. آسمانی خدا, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں خدا, تو اپنے روح کے تازہ مسا کو میری زندگی میں جاری کر. میں نہ بولوں بلکہ تیرا روح مجھ میں ہو کر بولے, اور خداوند اپنے لوگوں سے بات کیجیے یسوع نام سے, آمین. یہاں پر ہم نے خدا کے کلام میں سے یرمیہ کے ساتھ خداوند کلام کرتا ہے اور وہ رویا دیکھ رہا ہے. اور جب وہ رویا دیکھ رہا ہے تو خدا اس سے بات کر رہا ہے, اور اس سے بات کرتا ہوا کہتا ہے, اور خداوند نے فرمایا. کون فرما رہا ہے؟ خداوند یہاں فرما رہا ہے یرمیہ نبی کے ساتھ. اور آج خداوند کا کلام ہم سب سے فرما رہا ہے, ہم سب سے کلام کر رہا ہے. لکھا ہے, اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے کیا رہتا ہوں؟ بیدار رہتا ہوں. یعنی کہ جو کلام خداوند اپنے منہ سے نکالتا ہے, جو کلام خدا نے ہماری زندگیوں میں کیا ہے یا بولا ہے, اس سے پورا کرنے کے لیے خداوند کیا رہتا ہے؟ بیدار رہتا ہے. میرا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. ہمارا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے, بلکہ جو کلام وہ فرماتا ہے اسے پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. اب وہ کون سا کلام ہے اور وہ کیسی باتیں ہیں جو خداوند پوری کرنا چاہتا ہے؟ میں ایک حوالہ پڑھ کے پھر اپنے مین ٹاپک پر آؤں گا. ہم رومیو کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط 8 باب اور اس کی 28ویں آیت کو دیکھتے ہیں. رومیو کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو پڑھنے میں رہنمائی. ابھی ہم نے سیکھا ہے
کہ خداوند فرماتا ہے کہ تو نے خوب دیکھا, تو نے جب نظر کی ہے تو تو جان گیا ہے اور تو نے خوب دیکھ لیا ہے کہ میں اپنا کلام پورا کرنے کے لیے جاگتا رہتا ہوں, میں تیار رہتا ہوں. 28ویں آیت میں کیا لکھا بہن جی؟ 8ویں بات. اور ہم کو معلوم ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہے. خداوند کا بندہ کلام لکھتا ہوا میں سکھاتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر کیا پیدا کرتی ہیں؟ بھلائی پیدا کرتی ہیں. ہم سب آمین, ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے بہت برے حالات میں سے گزر رہی ہے. پوری دنیا کی اکنامی شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ اس بحران سے گزر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے. بہت ساری زندگیاں اس فانی دنیا سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں. ہم سب کا بھی یہ انجام ہے. لیکن خدا کا کلام آج ان حالاتوں میں ایک تسلی دیتا ہے اور ہمیں سکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ پہلے تو میں نے جو کلام فرمایا ہے اس سے پورا کرنے کے لیے میں کیا رہتا ہوں؟ میں بیدار رہتا ہوں, میں نہ اونگتا ہوں نہ سوتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کلام کیا ہے اور اسے کب, کیسے اور کہاں پورا کرنا ہے. آمین. اور اسی لیے خداوند کا بندہ پالوس رسول لکھتا ہوا ہمیں سکھاتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. کتنی چیزیں؟ سب کی سب چیزیں. اس کا مطلب جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے, وہ سب مل کر کن کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں؟ جو خدا سے. آپ سب محبت رکھتے ہیں؟ سب بولیں گے ہاللیلویا. سو پھر آپ آج جان لیجئے کہ آپ سے خدا محبت رکھتا ہے کیونکہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں. حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو, دکھ ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, افراتفری ہو, بحران ہو, کھانے کو کچھ نہ ہو, بیماری ہو, تنگی ہو, ڈر ہو, خوف ہو, یہ ہونے والا ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو چکا ہے, ایسا ہو گیا ہے, اب ایسا ہو جائے گا. ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم آئیڈیا لگاتے ہیں. فیوچر کا کسی کو پتا ہے؟ سوائے خدا کے کوئی انسان ہمارا فیوچر پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ان حالاتوں میں آپ کو ایک خداوند کے بندہ کی کہانی پر لے کر جانا چاہتا ہوں. اس کی زندگی میں بھی بہت پریشانی کا وقت آیا. میرے ساتھ نکالیے گا بہن جی پیدائش کی کتاب, اس کا 26واں باب میرے ساتھ کھولیے گا. آج ہم خدا کے دو بندوں کی زندگی پر غور کریں گے کہ جب ان کی زندگی میں پریشانی اور دکھ آئے تو انہوں نے کیا کیا. جیسے آج ہماری زندگی میں کال, دکھ اور پریشانی ہے. 26واں باب 26 چیپٹر, اس کی پہلی آیت سے بہن جی پڑھیے گا. اور اس ملک میں پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. یعنی کہ اسحاق کے یہاں بات ہو رہی ہے اور اسحاق کے جو والد تھے, جو اس کے باپ تھے ابراہیم, اس کے وقت میں بھی کال پڑا تھا. پھر کیا ہوا بہن جی؟ تب اسحاق جی اجرار کو جی فلسطینیوں کے بادشاہ ابی ملک کے پاس گیا. اس نے ایک کام کیا. اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جاؤ. پلیز ویٹ کیجیے گا سچی. جی ابراہیم کا جو بیٹا اسحاق ہے, ایک کال ابراہیم کے وقت میں پڑا اور ایک کال اسحاق کے وقت میں پڑا اور ایک کال اب ہمارے وقت میں پڑ رہا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا خوراک کے بحران سے گزر رہی ہے. کھانا نہیں. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کینیا میں, یوگنڈا میں
इंडिया में और दूसरे ममालिक में खाने को नहीं है, ऊपर से टिड्डियों ने हमला कर दिया, सारी खुराक पर फसलों को तबाह कर दिया। काल अब्राहम के दौर में भी पड़ा है, इसहाक के दौर में भी पड़ा है और हमारे दौर में भी पड़ा है। लेकिन अब इसहाक की जिंदगी पर गौर करते हैं कि उसने क्या किया, उसने कैसा अमल अपनी जिंदगी में किया है। तब इसहाक जरार को फिलिस्तीनियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया जी, और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा। खुदावंद ने इसहाक पर जाहिर होकर उसे कहा कि तू मिस्र को ना जाना, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रहना। खुदा ने अपना कलाम अपने बंदा पर नाजिल किया है। काल का वक्त है, खाने को कुछ नहीं है, बादशाह के पास मिलने और मदद के लिए गया होगा। उसका ध्यान उस वक्त दुनियावी बादशाह की तरफ है कि शायद ये बादशाह मुझे बचा लेगा। आज भी दुनिया में जो अमीर ममालिक है, छोटी कंट्रियां उनसे इमदाद मांगती हैं, उनसे कहती हैं कि हमारी कोविड-19 रिलीफ में मदद करो। अच्छी बात है, इसहाक भी गया है, लेकिन खुदा ने इस पर जाहिर होकर कहा है कि मिस्र को ना जाना। खुदा ने जाहिर होकर उसे कहा है कि मिस्र को ना जाना। तब क्या हुआ बहन जी? तू इसी मुल्क में कयाम रख। तू इसी मुल्क में क्या रख? कयाम रख, और मैं तेरे साथ हूँगा, क्योंकि मैं तेरे। कितने लोग आज ईमान रखते हैं कि खुदा आपके साथ। आमीन। हम भी दुख से, परेशानियों से, दुखों में से गुजर रहे हैं और काल सा समा है हमारी जिंदगी में। हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है या कौन से हालात हमारी जिंदगी में पैदा होने वाले हैं। जहां पर खुदा ने कलाम किया है इसहाक पर, क्योंकि खुदा इसहाक से प्यार करता था, खुदा मोहब्बत करता है इसहाक से, क्योंकि वो वाला बेटा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कौम बनी इस्राइल का नाम होने वाला, वादा का बेटा है। खुदा ने कलाम किया, खुदा उनको फिक्र है। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदा आप में से हर एक की फिक्र करता है। काल है, तंगी है, परेशानी है, खुदा ने कलाम किया है और आप बेहतर जानते हैं कि खुदावन आपको इस वक्त कहां कहां से मुहैया कराया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इसका? और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। तो इसी मुल्क में रह और मैं तेरे साथ रहूंगा। जिस किसी मुल्क में उस वक्त वो था, वो वहां से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर फसल नहीं है, खाना नहीं है, यहाँ पे दुख है, यहाँ पे तंगी है, यहाँ पर परेशानी है, शायद मुझे यहाँ से मूव कर जाना चाहिए। पर खुदा जानता है कि मैंने तुझे किसी मकसद के लिए इस मुल्क में ठहराया है और रखा है, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं और तू मेरी मर्जी के मुताबिक यहां पर है। तो आप सब भी इस मुल्क में खुदावन खुदा की मर्जी के मुताबिक है। आमीन। सो खुदावन ने उससे कहा है, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। आमीन। क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं इस तालीम को जो मैंने तेरे साथ बाप इब्राहिम से खाई है पूरा करूंगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। उसके बाप का रेफरेंस दे रहा है। मोहब्बत क्यों रखता है? क्योंकि इब्राहिम की औलाद से है इसहाक। मोहब्बत रखता है। उसके बाप का हवाला देता है कि मैंने उससे जो वादे किए हैं, आज आपकी जिंदगी में भी जो आपके वालिदैन से खुदा ने वादे किए, वो भी खुदा पूरे करेगा। आमीन। आपको इस मुल्क में रखने के लिए खुदा ने आपको यहाँ पर भेजा है। काल का समा है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, अफरा तफरी है, खाने पीने को नहीं है, दुख है, तकलीफ है, परेशानियों से गुजर रहे हैं। पर एक बात याद रखें कि खुदा अपने लोगों के हमेशा साथ होता है। और खुदा ने कहा कि वो कसम उसके बाप का रेफरेंस देगा। फिर क्या हुआ बहन? और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद करूंगा जी, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। और ये सब मुल्क भी मैं तुझे दे दूंगा। जिससे तू भागना चाहता है, जिससे तू छोड़कर जाना चाहता है, खुदा कह रहा तू मेरी कुदरत को क्यों नहीं समझता?
काल तो दुनियावी तौर पर है, मेरे पास वो इख्तियार और कुदरत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। खुदावंद उस काल को 1 मिनट में खत्म करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और आज इस काल को भी जो हमारी जिंदगियों में से गुजरा है, खुदा इसे खत्म करने की कुदरत रखता है। फिर क्या हुआ बहन जी? और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। जी, बरकत क्यों पाएंगी? आगे लिखा हुआ है इसका रीजन, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मैं मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। ये रीजन था। खुदा ने कहा मैं बरकत क्यों दूंगा? आप बरकत पाना चाहते हैं, आमीन। आप इस मुल्क में बढ़ना चाहते हैं, जहां कहीं खुदावन ने आपको रखा, आप खुदावन की मर्जी के मुताबिक हैं। अपने दिलों में शक ना पैदा करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, शक करने वाला आदमी समुंदर की लहरों की मानिद है। एक लहर आती है, फिर यूं चली जाती है। अगर आप वाकई खुदा से बरकत हासिल करना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन को अपनी जिंदगी में समझिए। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा और बरकत वो पाएंगे, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी है। खुदा के कलाम की बातों को मानना शुरू किया। उसके बाप ने, उसके बापा का, उसके डैडी का रेफरेंस दे रहा उसे, और बता रहा है कि बरकत इसलिए दूंगा कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन पर अमल किया। आमीन। जब खुदा जानता है कि आपकी जिंदगियों में दुख आने वाला है, आपकी जिंदगियों में मुसीबत आने वाली है, काल का समा आने वाला है, अफरा तफरी आने वाली है, तो खुदा के कलाम में भी हमने पढ़ा है कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। आप ईमान रखते हैं इस बात? इसहाक ने भी रखा है। जैसे ही इसहाक ने इस बात पर ईमान रखा है और वो ठहर गया जरार में, बहन जी 12वीं आयत से पढ़ेंगे, वहां पर जब इसहाक ठहर गया है, उसने खुदा की बात को मान लिया है, और खुदा ने रेफरेंस दिया उसके बाप का कि तेरे बाप ने भी मेरी बातों को माना था, इसलिए मैं तेरी फिक्र करता हूं, इसलिए तू मेरी नजर में है। मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हुआ, मेरा कान भारी नहीं कि मैं सुन ना सकूं। मुझे मालूम है कि दुनिया में काल है और सारी दुनिया के ऊपर कश्मकश है, वो परेशानी और अफरा तफरी का शिकार है और खाने के लिए कुछ चाहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि मसीही लोग, खुदा के लोग हमेशा आसमानी चीजों की तरफ नजर करते हैं। कहां नजर करते हैं? आसमानी चीजों पर नजर करते हैं। हम इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया को छोड़कर एक दिन हमने वहां जाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने बाप के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। भाई को थोड़ी देर बाहर लेते हैं। चलिए, आए हम सब कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान रखते हैं। और खुदावन का कलाम यहाँ पर इसहाक पर जारी हुआ है। खुदा ने कहा है कि मैं इस काल में तुझे संभालूंगा। आमीन। इस काल में तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। और जब खुदा ने इस काल में उसे संभालने की उससे कसम खाई है, तो उसे जरार में रुकने का कहा है। और जब वो जरार में रुका तो क्या हुआ बहन जी? 12वीं आयत से पढ़ेंगे। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और इसहाक ने फिर उस मुल्क में जहां पर काल था, खुदा ने कहा तूने ठहरना है। और जब उस काल की सिचुएशन में उसने किसकी आवाज को सुना है? और खुदा की आवाज को सुना है। हमने यिर्मयाह के सहीफों में पढ़ा था कि खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त क्या रहता है? बेदार रहता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करना जानता है, इसलिए खुदा ने उसे कहा मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, तू जरार में रह। फिर क्या हुआ? और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला। और जब उसने खेती की तो उसी साल उसे कितना मिला? 100 गुना। सब बोलेंगे हालेलुया। पहले काल है, वहां पर फसल उगने की कोई उम्मीद नहीं है। आज हम भी इंसान होते हुए परेशान होते हैं, खुदाया कब खत्म होगा कोविड-19? खुदावन कब रिस्ट्रिक्शंस अब की जाएंगी दुनिया से?
खुदावन कब काम खुलेंगे, खुदावन कब हम इस दुख से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जिसे पूरा करने के लिए वो बेदार रहता, उसने कहा सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम उनसे अच्छे नहीं हैं जो इस फानी दुनिया से कूच कर गए, तो भी खुदा का फजल है कि हम उसके लहू की प्रोटेक्शन से बचाए गए, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं और हम ठहरे हुए हैं, हम सब्र कर रहे हैं कि खुदावंद तो मुकर्रर वक्त पर आएगा और हमारी जिंदगियों में भी 100 गुना देगा। हालेलुया। हम खुदा की आवाज को सुनते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आमीन। हम इस बात के दुख में नहीं है, हम इस बात के गम में नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे पास वो जिंदा ईमान है जिस ईमान के वसीला से हम अनदेखी चीजों को मान लेते हैं। हमें ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। जैसे ही खुदा के बंदा ने खुदा की आवाज को सुन लिया, रुक गया, और अगली आयत पढ़िएगा बहन जी, क्या उसे 100 गुना मिला और खुदावन ने उससे बरकत बख्शी, और खुदावन ने उससे बरकत बख्शी, और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की की गई, और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होने होती लगी, उसकी जिंदगी में बरकत बढ़ती गई है। क्या क्या मिला उसे बहन जी? यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। यहाँ तक कि इतना बड़ा बंदा हो गया। तो कल देखा सी देखो तो कुछ भी नहीं सी, लगता कोई डाका मार लिया। इंसान में सोच लेते हैं, लेकिन जो इंसान खुदा की आवाज को सुनता है, जो इंसान ठहरता है और खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल करता है, क्योंकि तेरे बाप ने मेरे आईना रकमात को माना इसलिए मैं तुझे बरकत दूं। तू मेरा फॉलोअर है, तू मेरी बात को सुनना पसंद करता है, तो दुनिया की फिक्रों की तरफ तेरा ध्यान नहीं है। दुनिया क्या सोच रही है कि क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन तूने मेरी आवाज को सुना। खुदा का प्लान कुछ और होता है। खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आइए एक और बंदा की कहानी पर गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा सलातीन, पहला सलातीन 17वां बाब। यहां पर भी खुदा ने एक बंदा की जिंदगी में काम किया है। यहां पर खुदा ने इसहाक की जिंदगी में काम किया, काल में उसको सप्लाई किया है। खुदावंद ने उसे काल में उसे 100 गुना दिया है, क्योंकि वो काल में ठहर गया। वक्त लगा होगा, वक्त गुजारा होगा। अभी मलक के पास गया, खुदा ने कहा नहीं, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, तू क्यों दुनिया के बादशाहों के पास जाता है, तू क्यों अपनी नजर किसी की तरफ गाड़े हुए है। मैं तेरा जिंदा खुदा हूं, जो वादे मैंने तेरी जिंदगी में किए हैं उस कलाम को पूरा करने के लिए मैं बेदार हूं। तू क्यों ऐसा सोचता है कि शायद मैं तेरी आवाज नहीं सुनता, शायद मैं दूर चला गया हूं तुझसे। मेरी आवाज को पहचान। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? भलाई पैदा करती हैं। वो दुख हो, वो परेशानी हो, वो मुसीबत हो, जब आप शुक्रगुजारी करते जाएंगे, जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, दुनिया से ध्यान उठाकर खुदा के जिंदा कलाम पर लगाएंगे, तो वो आपकी फिक्र करेंगे। यहां पर एक और मर्द रास्तबाज की जिंदगी पर गौर करें। खुदा ने बड़े प्लान्स आपकी जिंदगी में रखे हैं। एक प्लान काल के वक्त इसहाक की जिंदगी में पूरा हुआ है, क्योंकि खुदा अपना कलाम नाजिल फरमाता है। खुदा ने बात की और उसे पूरा करने के लिए वो बेदार है। हमें और जहां पर एक और बंदा की जिंदगी में कलाम हुआ है, वो कुछ होने वाला है। यहाँ पर आइए 17वें बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। और एलिया तशबी और जलाद के परदेसियों में से था। अखीयाब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन वर्षों में न ओस पड़ेगी न मी बरसेगा, जब तक मैं न पढ़ूं। इस कहानी को हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीयब से कहा कि खुदावन इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन वर्षों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं न कहूं। खुदावन के बंदा ने कलाम किया है अखीयब के साथ, और उसे कहा है आसमान बंद हो जाएगा। और आपको पता, जब आसमान बंद होता है, मी नहीं बरसता, तो फिर फसलें नहीं पैदा हो। अगली आयत से पढ़ते हैं बहन जी क्या हो।
और खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ। खुदावन का कलाम किस पर नाजिल हुआ है? एलिया पर। किस पर नाजिल हुआ है? एलिया। किसकी बात हो रही है? कलाम की। और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए क्या रहता है? बेदार रहता है। सब कहेंगे बेदार रहता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। बहन जी, एक खास बात, खुदा ने इसहाक से कहा तू मिस्र को ना जा, तू जलाहर में रुका रहे। खुदा का मंसूबा उसकी जिंदगी में यह था कि मैं तुझे यहां बरकत दूंगा, मैं यहां पर तुझे फराम करूंगा, यहां पर मैं तेरी जिंदगी में अपने कलाम को पूरा करूंगा जिसके लिए मैं बेदार रहता हूं। और अब खुदा ने यहां पर एलिया से कहा है कि तू अब जरा यहां से चल दे। कभी कभार खुदा हमें किसी जगह से आगे बढ़ने के लिए भी कहता है, कभी कभार खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी में किसी और जगह पर होता है। तो खुदा ने यहाँ पर अपना कलाम किया और उससे कहा, और खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल और मशरिक की तरफ उस रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के पास है जाकर छुप। वो वहां चला गया। फिर क्या हुआ? और तू इसी नाला में से पीना, और मैंने कहो को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। किन को हुक्म कर दिया? कहो को। और हम कहों की नेचर के बारे में जानते हैं बचपन से, और वो तो लोगों का खाना छीनते हैं, वो तो लोगों का खाना छीनते हैं और लेकर चले जाते हैं। पर यहां पर मामला कुछ और है, यहां पर कहानी कुछ और है, यहां पर हकीकत कुछ और है। खुदा ने उसे कहा कि तू वहां चला जा। वो गया और खुदा ने उससे कहा, और तू उसी नाला में से पीना। खुदा हिदायत जारी कर रहा है कि जब काल पड़ेगा, मींह नहीं बरसेगा, कुछ खाने को ना होगा, तो खुदा उसकी देखभाल कर रहा है। खुदा का कलाम नाजिल हुआ है, और खुदा का कलाम जब नाजिल हुआ है तो उसने कहा उसी नाला में से पीना, और कौमों को हुक्म किया कि वो तेरी परवरिश करें। कव्यान हुक्म करता जिन्हें लोग का तो खून देने। खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है, वो किसी से छीन कर खुदा के लोगों की। कवे की नेचर ऐसी है कि वो छीनना पसंद करता है, वो किसी के पोजेशंस को लेकर भागना पसंद करता है। पर जब खुदा कलाम करे तो वो नेचर्स बदल देता है। जब खुदा कलाम करे तो वो लोगों की फितरत बदल देता है। जब खुदा कलाम करे तो वो जानवरों की फितरत बदल देता है। आमीन। क्योंकि जिंदा खुदा के पास से इख्तियार है, वो अपना कलाम फरमा कर उसे पूरा करता है, क्योंकि वो उसे पूरा करने के लिए क्या रहता है? बेदार है। हमें यहाँ पर आगे इस कहानी को और पढ़ते हैं कि यहाँ पर खुदा ने उसकी जिंदगी में क्या मंसूबा किया हुआ है। तो उसने जाकर खुदावन के कलाम के मुताबिक किया। उसने जाकर किसके मुताबिक किया? खुदावन। अपनी मर्जी के। उसने ये नहीं कहा कि खुदा मुझे करेत के नाले को भेज रहा है और मैं यूना की तरह दूसरी राह को चला जाऊं, क्योंकि खुदा का कलाम नाजिल हुआ और वो जानता था, वो मर्दे रास्तबाज था, वो बंदा खुदा की मर्जी को और आवाज को सुनना जानता है और उस पर अमल करना जानता है। और उसने वैसा ही किया जैसे खुदा की मर्जी थी। फिर क्योंकि वो क्या और क्रीत के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कभी उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। उस नाला में से पिया करता था। पानी पींदा नारे तो रोटी तो गोश्त कवे लेके आ रहे हैं। कभी भी गोश्त खाना पसंद करते हैं ना, हमारे बचपन में देखा होगा, वो बोटियां उठा के भाग जाते की हालत होती होनी कभी आनी। गोश्त उनके मुंह में होगा और देने एलिया को आ रहे हैं, क्योंकि उनकी नेचर में ये है कि दूसरों का खाना चुरा लें, दूसरों का खाना खा लें। लेकिन उन हालातों में खुदा ने कव्वों को हुक्म किया, क्योंकि खुदा का मंसूबा ये था कि अपने बंदा रास्तबाज बंदा की काल के अय्याम में क्या करेंगे? परवरिश करेंगे। खुदावन उनकी फिक्रमंदी करता है अपने बंदा की। इसी तरह खुदा आप में से हर एक की फिक्र करता है। एलिया तशबीह जो है वो हमारा हम तबीयत इंसान, हम भी वैसे बन सकते हैं।
जब हम खुदा की आवाज से सेंसिटिव हो जाएंगे, हम जब खुदा की आवाज को सुनना पसंद कर लेंगे, फिर हम खुदा के मंसूबों को समझना शुरू हो जाएंगे कि खुदा ने हमें इस मुल्क में क्यों रखा, खुदा इस कोविड-19 की सिचुएशन में हमारी कैसे कैसे फिक्र करता है। मैं नहीं जानता, अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि ये कोविड-19 कब खत्म होगा, मैं ये नहीं जानता कब खत्म होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि खुदावन इन हालातों में हम सब की परवरिश करना चाहते हैं। आमीन। उसके मंसूबे हमारी जिंदगी में बहुत बड़े हैं, जिनको वो अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और किन के लिए बेदार रहता है? जो उसके कलाम के मुताबिक करते हैं। इसहाक ने भी कलाम सुना, वो जरार में ठहर गया, क्योंकि खुदा यहाँ पर एलिया तशबीह से खुदा ने कलाम किया कि तू करेत के नाला को जा। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो खुदावंद मेरे जहन को खोला, मुझे सिखा रहा था। यहाँ पर दो प्लान खुदा ने से दिए। एक पहला प्लान दिया कि जब उसे कौवे खिला रहे हैं, खुदावंद ने कौवों की नेचर को बदल दिया। आपकी जिंदगी में भी खुदा ऐसे लोग खड़े करेगा जिनकी नेचर तो चुराना होगी, जिनकी नेचर तो किसी की खिलाफ वर्जी करना होगी, पर जब खुदा कलाम फरमाएगा तो वो लोग आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। जल्दी से बहन जी से पढ़िएगा आगे क्या हुआ। गोश्त मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खुदा उसकी परवरिश कर रहा है। और कुछ अरसा के बाद क्या हुआ? वो नाला सूख गया, और इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं होती। इसलिए क्योंकि नाला सूख गया, क्योंकि एलिया ने खुद ही दुआ की है कि मैं खुदा के हयात की कसम खाता हूँ कि कोई मींह ना बरसेगा। और आपको पता है मींह ना हो तो फिर पानी नहीं होता। एक मंसूबा खुदा ने पहले कौवों को भेजा है, खुदा उसकी परवरिश कर रहा है। एक दरवाजा बंद हो गया, पानी नहीं है, रोटी भी नहीं आ रही। एक मंसूबा यहाँ पे स्टॉप हो गया। जैसे ही एक मंसूबा उसकी जिंदगी में स्टॉप हुआ, खुदावन को उसकी क्या थी? फिक्र थी। खुदावन खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है। और उसने फरमाया कि मैंने इसको करेत के नाला की तरफ भेजा है, इसके खाने पीने का बंदोबस्त मैंने करना है। इसकी जिंदगी में जो मेरे मंसूबे हैं ये उनको पूरा करने के लिए तैयार है, तो मैं इसकी फिक्र करूंगा। इसीलिए वो कहता है कि मेरे वादे सारे हाँ और आमीन के साथ। आमीन। आप सबकी जिंदगी में भी खुदा बड़े बड़े मंसूबे रखता। और जब ऐसा हो कि एक जगह से आपको फराहमी हो, आपको बरकत मिल रही हो, आप भर रहे हो, और अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाए, अचानक से वो दरवाजा बंद हो जाए, तो कोई बात नहीं। लिखा कुछ अरसा के लिए, कितने? कुछ अरसा के लिए वहां पर बंद हुआ। फिर खुदावन ने उसे याद किया, और हम पढ़ते हैं 8वीं आयत से। क्या हुआ बहन जी? तब खुदावन का ये कलाम उस पर नाजिल फिर खुदावन का कलाम नाजिल हुआ। क्या हुआ? फिर खुदावन का कलाम नाजिल हुआ। जब जब खुदावन को फिक्र होती है, खुदा कलाम नाजिल करता है और उससे पूरा करने के लिए बेदार रहता है। खुदावन का कलाम फिर नाजिल हुआ है, क्योंकि एक दरवाजा बंद हो गया। खुदावन को उसकी फिक्र है। क्या हुआ बहन जी? कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। अब यहाँ से उठ और सैदा के सारपत को जा और उत्थे जाके रही। देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। देख मैंने बेवा को हुक्म कर दिया। पहले खुदा ने कव्वों को हुक्म किया, उनकी नेचर को बदल दिया। और यहाँ पर खुदा ने बेवा को हुक्म किया। हम सोचते होंगे कि बेवा, जब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं तो उस बेवा, जल्दी से पढ़ लेते हैं बहन जी, जल्दी से इसे पढ़िएगा आगे। फिर तो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरा हाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा नमक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुपरी में है। और देख मैं एक लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम इसे खाएं और हम इसे खाएं और मर जाएं। खुदा को उस बेवा की भी फिक्र थी जिसके पास खुदा अपने बंदा को भेज रहा है। खुदा काल में अपने अपने लोगों को जानता है। जिसकी उसने फिक्रमंदी करनी होती है, खुदा अपने लोगों को भेजता है। यहाँ पर मर्द रास्तबाज
एलिया, खुदावन ने उसकी जिंदगी में दूसरा रास्ता खोला है। उसका प्लान एक बंद हुआ, खुदा ने दूसरे दरवाजे खोल दिए। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी जब दरवाजे बंद होते हैं, आपको लगता है खुदा हमारी फिक्र नहीं कर रहा, तो खुदा के कलाम पर ध्यान दें। उसके वादे क्या हैं? खुदा के कलाम में लिखा है सब चीजें मिलकर उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, खास तौर उनके लिए जो उसके खास मंसूबा और इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। अगली आयत में लिखा है, फिर खुदा ने उस बेवा की भी फिक्र की, और बेवा परेशान हो रही है कि हमारे पास कुछ खाने को नहीं है। मरते रास्त पास खुदावन के बंदा, अरे मेरे खुदावन हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा आटा है, मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं इसे पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे। और वो क्यों कह रही है मर जाएंगे? क्योंकि आगे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, मुस्तकबिल में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और उन्हें आने वाले वक्त में सिर्फ मौत नजर आ रही। खाकर फौरन मर नहीं जाना, बल्कि उनको पता है कि अगले दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन होगा, तो आखिर को हम मर जाएंगे। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जवाब दिया खुदा उनके बंदा में, बहन जी पढ़िएगा। और एलिया ने उससे कहा, डर मत। एलिया ने उससे कहा, डर मत, तू नहीं मरेगी। तू जो सोच रही है कि मैं तो मरने की और मेरा बेटा भी मरने का और हमारी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, तू इस खौफ में मुब्तला ना हो, मत डर। क्यों? जा और जैसा कहती है कि पर पहले मेरे लिए एक टिकिया इसमें से बनाकर मेरे पास जा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर, लकड़ियां चुन, जाकर बना, पर मेरे लिए पहले लेकर आ, क्योंकि मैं मर्द रास्तबाज हूं और खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं तेरी भी फिक्र करूं। फिर क्या होगा बहन? इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, मुझे दे, क्योंकि खुदा ने मुझे भेजा है। खुदा का मंसूबा, खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में नाजिल हुआ और मैं तेरे पास आया हूँ। तू सारपत में रहने वाली है, मैं क्रेत के नाला से चला हूँ, खुदावन ने मुझे तेरे पास भेजा है। खुदावन ने बताया है कि वहां पर ऐसे ऐसे होगा, और जब मैं आया हूँ, पर पहले मुझे दे और फिर अपने बेटे को भी देना। फिर क्या लिखा? क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि इस दिन जब मैं जी कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसा, उस दिन तक जब तक खुदा जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी ना तेल की कुप्पी में से तेल खत्म होगा। आमीन। अगली सारी कहानी हम जानते हैं। फिर वैसा ही हुआ है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, और जब जो लोग खुदा के लोगों की फिक्र करते हैं, खुदा उनकी भी मटियों को भरता है, खुदा उनके भी खितों को भरता है, खुदा उनको भी बरकत देता है, खुदा उनकी जिंदगी में भी अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेतार रहता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेतार रहता है। बार खुदा का कलाम नाजिल हुआ, एक दरवाजा बंद हुआ, क्रेत का नाला सूखता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर खुदा ने इसहाक से कहा, यहीं रह, मैं तुझे यहीं बरकत दूंगा, मैं यहीं तुझे बढ़ाऊंगा। और उसे कितने गुना मिला? 100 गुना मिला, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। हालेलुया। इसी तरह जब आप खुदा से प्यार करते हैं, मत डरें कि क्या होने वाला है, मत डरें कि कल क्या होगा, मत डरें कि आने वाले वक्त में क्या होगा, मत डरें कि तब क्या हुआ। खुदा अपने कलाम को जब नाजिल फरमाता है तो उसे पूरा करने के लिए बेदार रहता है। आप सब के सब खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। खुदावन ने आपको चुना है, तभी तो आप मसीह को फॉलो करते हैं। आप वो भी हो सकते थे जिन तक अभी तक कलाम ही ना पहुंचा। क्यों खुदावन की मर्जी आपकी जिंदगी में जारी हुई है? क्योंकि आप उसके पाक इरादा और मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। अपने आप को कमजोर मत समझे, अपने आप को रद्द मत समझे। खुदावन का बहुत बड़ा मंसूबा आपकी जिंदगी में, इसलिए खुदा आपको इस मुल्क में लाया है, इसलिए खुदा आपको इन दुखों और मुसीबतों में से गुजार रहा है, आपको तैयार कर सके। और खुदावन कहता है खौफ ना कर। जहां पर एलिया ने भी बेवा से कहा, तू तो मरने वाली है, तू तो ऐसा सोचती है, अब मैं गई, आज मेरा नंबर ही, मैं भी गया।
پر تو کیوں خوف کرتی ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرے پاس کون آیا ہے؟ ایکچولی ایلیا اپنے آپ پر فخر نہیں کر رہا تھا، وہ زندہ خدا کے کلام پر فخر کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ سو آپ سب کی زندگی میں خدا کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں بڑے پلانز رکھتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ سو مت ڈریں، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو خدا نے دوسرا کھولے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو خدا کے ارادہ کے موافق چلتے رہنا ہے، فرما برداری کریں، خداوند کے کلام کی آواز کو سننے میں سینسٹیو ہو جائیں، اس کے کلام کو سمجھنے میں سینسٹیو ہو جائیں اور اس کے ارادوں پر بھروسہ کرنے میں سینسٹیو ہو جائیں اور اس کی بات پر قائم ہونے میں سینسٹیو ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ اس کو پتا ہے کون سی بہن کون سا بھائی پورے دل سے میرے پیچھے مجھے تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈھونڈ تلاش کر ٹٹول کے دیکھ کے میں کہاں ہوں اور تو مجھے پا لے گا۔ یہاں پر آج ہم نے دو راست بازوں کی زندگی میں خدا کے منصوبے کو دیکھا ہے، انہی سیم سچویشنز میں۔ کوئی کال آج ہماری زندگی میں نیا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ برسوں سے دنیا اس کا مقابلہ کرتی آئے گی۔ سروائیو کون کرتا ہے؟ سروائیو وہ کرتا ہے جو خدا کی آواز کو سنتا ہے، جو خدا کے بولے ہوئے کلام پر بھروسہ کرتا ہے، کچھ ہو یا نہ ہو وہ یہ کہتا ہے خداوند مہیا کرے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس یہوہ یری پر ایمان رکھتا ہوں جو مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت پائیں، آپ تقویت پائیں، آپ زور پائیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا، خداوند اپنے لوگوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، خداوند اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا وقت اس ملک میں کیسے گزرا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ آپ کو خداوند نے کتنی دکھوں سے نکالا ہے، خداوند نے آپ کو کتنے بڑے بڑے کالوں سے نکالا ہے، خداوند نے کتنی افراتفری سے آپ کو سنبھالا ہے، اور جب تک خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمیشہ یہوہ ساڈے نال نال ہے، اور جب یہوہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی بھی کال کی فکر نہیں ہے، ہم کسی بھی دکھ سے لڑ جائیں گے، ہم کسی بھی پریشانی سے جھگڑ جائیں گے، کیونکہ یہوہ کا کلام ہماری زندگیوں میں نازل ہوا ہے اور وہ اسے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ آخری آیت، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو، آپ اسے خداوند کی مرضی جان کر سمجھیں کہ وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے۔ آمین۔ مت ڈریں، خداوند کے کام میں آگے بڑھتے جائیں، اور خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ کے ہر ایک سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہے، اس کے کاموں کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہیں، کیونکہ وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے۔ آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور اس کلام مقدس پر غور کرتے ہیں۔